Welcome back to your Physics People channel. So welcome back, lecture number 7. So last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? What we learned in last class? Heat engines and refrigerator. What is efficiency and what is coefficient of performance? So today we are going to learn numericals. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ KCET ಮತ್ತು NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, come children. Let us discuss one by one. So first question को देखो भाई, first question. So this question was asked in NEET 2018. NEET 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ क्वेश्चन. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो. स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. I am going to read the question. Just observe. The efficiency of an ideal heat engine working between the freezing point and boiling point of water is. So ऑप्शन को देखो भाई, ऑप्शन को देखो, स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन है 26.8%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 6.25%, ऑप्शन डी 12.5%. Come children, let us solve. So we know that, what we know, efficiency formula, we know that, whether we know or not, just write down. Eta is equal to 1 minus T2 upon T1. Last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ, ಹೌದಾ? T1 is given, T2 is given, yes given, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. T1 T2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ T1 T2 क्या है देखो, T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है भाई, कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? यस वेरी गुड, 100 डिग्री सेल्सियस. केल्विन को कन्वर्ट करो, कितना होता है 100 प्लस 273, कितना हुआ 373 केल्विन. देखो T1 373 केल्विन. T2 फ्रीजिंग पॉइंट, यस वेरी गुड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता, गुड 0 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट टू केल्विन, वेरी गुड 273. सो कितना हुआ कुल मिला के 273 केल्विन हुआ. कोई शक? नो शक. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. eta इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है भाई, देखो कितना है 273 है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 है. सो रीटा लपा eta इज इक्वल टू 1 माइनस 3377 कैंसिल. नो, ಅದು ಭಯಂಕರ मैथमेटिक्स ಆಗ್ತದೆ. वी वांट सिंपल मैथमेटिक्स हियर. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट. ये कितना होता है भाई, ये कितना होता है 0.73 होता है. सो eta इज इक्वल टू 1 माइनस 0.73 कितना होता है भाई, वेरी गुड 0.27 होता है. यस, परसेंटेज को कन्वर्ट करो भाई, वी शुड कन्वर्ट टू परसेंटेज. हाँ करो भाई, कितना होता है भाई, eta इज इक्वल टू नॉट eta 0.27 इंटू 100, कुल मिला के कितना होता 27%. यस, 27 ಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಯಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ at when children? आस्क्ड in NEET 2016. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार. The temperature inside a refrigerator is T2 degree Celsius and the room temperature is T1 degree Celsius. Full point. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally will be. Go through the question. Okay. So let us solve this question. So what we calculate here? What we need to calculate here, children? Yes, here we should calculate water heat. Yes, we should calculate water heat. Okay ba? Come children. So let us calculate. इधर देखो क्वेश्चन में क्या दिया. फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट. रूम टेम्परेचर दिया, वेरी गुड. रूम टेम्परेचर इज गिवन. कितना है रूम टेम्परेचर? आई एम गोइंग टू कंसीडर T1 रूम टेम्परेचर. कितना है रूम टेम्परेचर? T1 डिग्री सेल्सियस है. ओके, देन अनदर वन. टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर कितना है? टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर कितना है? टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर कितना है भाई, देखो रेफ्रिजरेटर कितना है, टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर दैट इज
I will take T2. I am going to consider as T2. कितना है भाई T2 कितना है? बोलो 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 कितना है T2? T2 is equal to yes small T2 degree Celsius. कोई शक? No शक. ठीक है? So this is first point. This is second point. Next, for refrigerator, we know that. So in previous class we learned for refrigerator, we know that what we know children, Q1 upon Q2 is equal to T1 upon T2. ठीक है भाई? Okay, Q1 upon Q2 is equal to T1 upon T2. देखो T1 कितना है? T1 है, small T1. केल्विन को कन्वर्ट करो, T1 plus 273 होगा. ये कितना होगा? T2 plus 273 होगा. कोई शक? नो शक. सब्स्टिट्यूट करो, कितना होता है देखो भाई? T1 plus 273 divided by T2 plus 273. ठीक है भाई? Is it clear? Clear. इधर देखो, Q1 upon Q2 is equal to T1 plus 273 divided by T2 plus 273. I will write like this. So here we know that, हमको पता है, क्या पता है? In case of refrigerator, W is equal to Q1 minus Q2. Do you remember? Yes, remember. So Q2 कितना होता है? W minus Q1 होता है. W minus Q1 होता है. Correct ना? No. Wait. Q2 इधर भेजो. Q2 is equal to Q1 minus W होता है. Clear? इधर सब्स्टिट्यूट करो Q2. So Q1 divided by, देखो क्या होता है? Q2 कितना है? Q1 minus W. T1 plus 273, T2 plus 273. क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर है? सब क्लियर है? इसको रेसिप्रोकल ले लो भाई, रेसिप्रोकल ले लो. क्या होता है रेसिप्रोकल? Q1 minus W, Q1 is equal to T2 plus 273, T1 plus 273. करेक्ट है? ओके. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यस, 1 minus W upon Q1, T2 plus 273, T1 plus 273. ठीक है? So 1 minus T2 plus 273, T1 plus 273, W upon Q1. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. Yes, let it be. So LCM ले लो भाई. क्या होता है? So LCM लिए तो T1 plus 273 is the LCM. ऊपर क्या लिखने का? T1 plus 273 minus T2 plus 273 W upon Q1. Direct क्या? 273 minus 273 because minus into plus minus. So क्या बचा? T1 minus T2 divided by T1 minus T2 divided by बोलो, T1 plus 273 is equal to W upon Q1. ओके ओके. सो क्वेश्चन में वर्क दिया, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में वर्क दिया. वर्क कितना दिया? वो 1 जूल वर्क दिया. सो हियर वर्क इज 1 जूल. सब्स्टिट्यूट करो, T1 minus T2, T1 plus 273, 1 upon Q1. ठीक है? ठीक है भाई? टेल आंसर कितना होगा? बोलो. Q1 is equal to कितना होगा? वेरी गुड. सो फाइनल आंसर Q1 is equal to, रेसिप्रोकल ले लो, T1 plus 273 divided by बोलो T1 minus T2 is the correct answer. So it is little bit lengthy. Yes? Is it clear? Okay. Next क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो. क्या है क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन was asked in NEET 2016. क्वेश्चन क्या है? A refrigerator works between 4 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. बोले तो क्या दिया? T1, T2 दिया. गुड. It required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerated space constant. The power required is, you will calculate. Okay? Come children, let us discuss. First, let me write given things. बोलो भाई, क्या क्या दिया क्वेश्चन में? T1 दिया. T1 कितना दिया? 4 डिग्री सेल्सियस दिया. केल्विन को कन्वर्ट करो, कितना होगा? 277 केल्विन होगा. T2 दिया. T2 टेम्परेचर ऑफ द सिंक. नो नो नो.
T1 should be more. T1 should be more. So I think it is the temperature of the sink, and it is temperature of the source. T1 30 डिग्री सेल्सियस. सो कुल मिला के कितना होता है 30 प्लस 273 कितना होगा 303 केल्विन होगा. ठीक है भाई. T1 कितना T1 टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, T2 टेम्परेचर ऑफ द सिंक. ओके. नेक्स्ट हीट दिया. हीट को देखो, हीट कितना दिया, हीट Q1 दिया और Q2 दिया. यस Q2 दिया. वाई Q2? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಂಕ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ Q2 ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ Q2 कितना दिया 600 कैलोरी. हाँ 600 कैलोरी. यस 600 कैलोरीज. यस 600 कैलोरीज. नेक्स्ट we know that what we know, can anyone tell me? Coefficient of performance formula beta is equal to क्या है formula? Q2 divided by Q1 minus Q2. Q2 divided by Q1 minus Q2. In terms of temperature I am going to write T2 divided by T1 minus T2. Clear children? Is it clear? Clear there? Okay, let us substitute the values. Beta is equal to T2 कितना 277, T1 कितना 303 minus 277 कितना होता 277 divided by maybe 26 it is. So it is 26. Coefficient of performance मिला. Okay. So next step. We know that coefficient of performance is given by beta is equal to Q2 upon W. लास्ट क्लास में ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फार्मूला बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W. ओके. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू बोलो W इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा इंटू Q2 लिख सकता हूँ भाई. यस वी कैन राइट. अभी देखो W इज इक्वल टू बोलो W इज इक्वल टू बीटा हमको पता है 277 अपॉन 26. I want 1 upon beta. 1 upon beta कितना होता है? रेसिप्रोकल करो. So 26 upon 277 होता ना. Q2 is given 600 calories per second. So it is in terms of calorie. I should convert joule में convert करो भाई. So if I want to convert calorie to joule, I should multiply with 4.2. Do you remember? Yes, very good. So if we calculate means so answer is equal to the yes 236.5 joule per second. So W is equal to 236.5 joule per second. बोले तो watt is the answer. Clear? Next question को देखो. हाँ, this question was asked in 2017 and 15. A Carnot engine having an efficiency of 1 upon 10% 1 upon 10 as a heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at a lower temperature is. एक बार क्वेश्चन को पॉज करो, क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो चिल्ड्रन. क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ने के बाद we will get one idea what we should calculate here. हमको क्या कैलकुलेशन करने का? Heat absorbed, the amount of heat energy absorbed from the reservoir. बोले तो Q1 और Q2 heat absorbed Q1 or Q2. That's very good. We should calculate here Q2. So let us calculate. Come children. So we know that whether we know or not, just write down the relation between tell me what kind of relation? हाँ, eta and beta. eta और beta क्या है? बीच रहने वाला रिलेशन का कैसा है? Yes, beta is equal to 1 minus eta divided by eta. Yes, but in question they have mentioned eta. eta दिया है क्वेश्चन में. कितना है? 1 upon 10 है. Clear? Okay. Substitute करो. कितना होगा? So beta is equal to 1 minus 1 upon 10. So 1 upon 10. इसको कैलकुलेशन करो कितना होता? यस
कैलकुलेशन किया तो ये कितना होता है भाई? कैलकुलेशन करो, कितना होता है? कितना होता? कैलकुलेशन करो। यस, 9/10 इंटू 10 बोले तो कितना होता है? 10 10 कैंसल, 9 ओनली। सो बीटा मिला, बीटा बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ओके, देन वी नो दैट वेदर वी नो और नॉट, जस्ट राइट डाउन। हमको क्या पता है? बोलो, बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। W इज गिवन, वर्क इज गिवन। वर्क कितना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कितना दिया वर्क? 10 जूल दिया। सो वर्क इज 10 जूल। सो राइट नाउ वी नो बीटा, वी नो W, go for Q2, go for Q2। so Q2 is equal to beta into W, Q2 is equal to beta into W। so कितना होगा भाई? देखो, Q2 is equal to Q2 is equal to Q2 is equal to beta 9 W 10। 9 into 10 कितना होता? yes, very good, 90 joule। Q2 is equal to 90 joule। so which one is the correct option? Option A is the correct। next question। yes, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो। KCET 2013 इट इज। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो। कम चिल्ड्रन, लेट अस सॉल्व। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को देखो। क्वेश्चन में दो इंजन दिए हैं, दो कार्नोट इंजन दिए हैं, इंजन ए एंड इंजन बी, इंजन ए एंड इंजन बी। यस, केस वन, केस वन। सो फर्स्ट वी नो दैट eta is equal to 1 minus T2 upon T1। ठीक है भाई? केस वन, फॉर इंजन ए, फॉर इंजन कैपिटल ए, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ए 1 माइनस बोलो, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। इंजन ए का T2 वैल्यू कितना है? क्वेश्चन को देखो, वेरी गुड, T है। इंजन ए का T1 वैल्यू कितना है? यस, वेरी गुड, कितना है? T1 ही है। ठीक है? सो फॉर इंजन बी, सो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन बी 1 माइनस, बोलो भाई, इंजन बी का T2 वैल्यू कितना है? यस, वेरी गुड, कितना है? बोलो। यस, T2 है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में है इंजन बी का T1 वैल्यू कितना है? यस, वेरी गुड, क्वेश्चन में दिया है, कितना है? बोलो, टेल मी चिल्ड्रन, कितना है? वैल्यू कितना है? टेल मी, टेल मी, टेल मी। यस, T है, T है। ठीक है? सो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके बोलो क्या क्या होता है, क्या क्या होगा। देखो, सो आई एम गोइंग टू राइट एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द इंजन बी। सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस T अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T। ठीक है? करेक्ट है? यस। कैलकुलेशन करो, क्या क्या कैंसिल होगा? 1 1 कैंसिल, यस, माइनस साइन कैंसिल, यस, क्या बचा? क्या बचा? T अपॉन T1, T2 अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T स्क्वायर T1 इंटू T2। सो T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़ो। एन इंजन, यस, पढ़ो। एन इंजन has efficiency of 1/6 when the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, its efficiency is double, then the temperature of the source is, okay, try to solve children, solve करो। come children, let us discuss। अभी देखो, we know that eta is equal to 1 minus T2 upon T1। ठीक है? ठीक है भाई? यस, ಓಕೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಂದ್ರೆ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, T1 इज इक्वल टू हाउ मच? T1 को कैलकुलेशन करने का। कम चिल्ड्रन, लेट अस कैलकुलेट। अभी देखो, इंजन का एफिशिएंसी कितना है? 1/6 है।
सो राइट इट 1/6 1 माइनस T2 अपॉन T1। कोई शक? नो शक। सो इसको कैलकुलेशन करो, कितना होता? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। सो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, ये कितना होता कुल मिला के? 5/6 होता। कॉल इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बोलो, करेक्ट है? देन नेक्स्ट क्या किया? When the temperature of the sink is decreased by 62 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज गोइंग टू डबल। यस और नो? एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज गोइंग टू डबल सिंस द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स रिमेन्स अनचेंज। यस, अनचेंज। देखो सेकंड केस, देखो सेकंड केस को देखो। सेकंड केस में टेम्परेचर को डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया? 62 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज किया, एफिशिएंसी डबल हुआ। देखो एफिशिएंसी डबल हुआ, इनिशियल एफिशिएंसी 1/6 डबल हुआ, बोले तो 2 × 1/6, ठीक है? 1 माइनस T2 टेम्परेचर को डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया? 62 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस। T1 कैलकुलेशन करो, कितना होता? 1/3, 2 1 जा 2 3 जा 1 माइनस T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाय T1। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कैलकुलेशन करो, T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाय T1, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3। इधर देखो, T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाय T1, 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस। 3T2 माइनस 186 इज इक्वल टू 2T1, 3 T2 इधर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 T2 का वैल्यू कितना होता है? 5/6 इंटू T1, सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 186 इज इक्वल टू 2 इंटू T1। ठीक है भाई? नेक्स्ट 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है? 3 1 जा 3 2 जा, सो कितना होगा बोलो? 5/2, यस, 5/2 T1 माइनस 186 2T1। कैलकुलेशन करो, 5/2 T1 माइनस 2T1 186। इसको कैलकुलेशन करो भाई, कितना होता है? इसको कैलकुलेशन करो। T1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचता है? 5/2 माइनस 2 कितना होगा? सो आई विल राइट फाइनल आंसर T1 1/2 186। ओके, T1 1/2 186 बोलो भाई। सो T1 इज इक्वल टू 186 इंटू 2 कितना होता है? 186 इंटू 2 कितना होता है? 372 होता है, 372 कैलोरी। बट आंसर सेल्सियस में है, सेल्सियस को कन्वर्ट करो, सेल्सियस को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। T1 इज इक्वल टू 372 माइनस 273। सो व्हाट इज द आंसर? टेल मी व्हाट इज द आंसर? कितना होता है? यस, 99 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 into 10 to the power 6 calories of heat at higher temperature. Amount of heat converted to work is. Amount of heat converted to work is. Yes. Question को पढ़ो. Question को पढ़ा. Okay. Let us solve this one. So look at here. We know that eta is equal to 1 minus T2 upon T1. कोई शक? So we know that 1 minus Q2 upon Q1. We know that. Both are efficiency equations. Correct, children? Okay. Equation number 1, equation number 2. Yes? Eta. LHS is same. If LHS is same, RHS will also same. So I will write 1 minus T2 upon T1 is equal to 1 minus Q2 upon Q1. कोई शक? करेक्ट है भाई? ओके, सब्स्टिट्यूट करो। T2 क्वेश्चन में दिया, T2 क्वेश्चन में कितना है? 400 है। यस, वेरी गुड। T1 कितना है? 500 है। ओके, 1 माइनस Q2 दिया, आंसर इज नो, Q2 नहीं दिया। Q1 दिया, आंसर इज यस, Q1 दिया। कितना दिया? 6 into 10 to the power 4। 6 into 10 to the power 4। क्लियर है भाई? 1 1 कैंसिल,
माइनस साइन कैंसिल, क्या बचा 400 डिवाइडेड बाय 500 Q2 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 4. सो 0 0 कैंसिल, 4 अपॉन 5 Q2 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 4. ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. Q2 इज इक्वल टू कितना होता है 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 4. बोलो कितना होगा 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5. सो Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 4.8 होगा. 10 टू द पावर 4 कैलोरीज. यस, एनर्जी कैलोरी में दिया है. यस चिल्ड्रन, यस. सो Q2 मिला. Q2 मिला. हमको क्या कैलकुलेशन करना है इधर, हाँ, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क. अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क. अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क. सो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. Q1 दिया, यस दिया, कितना दिया 6 इंटू 10 टू द पावर 4. Q2 दिया, कैलकुलेशन किया. सो कितना होता है W इज इक्वल टू tell me 1.2 into 10 to the power 4 calorie is the answer. Understood? Good. Next question. So screen के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो. So KCET 2003 क्वेश्चन को पढ़ो. स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है. An ideal gas heat engine operates in a Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 kilocalorie at the higher temperature. Good point. The amount of heat in kilocalorie converted into work is equal to. So we should calculate work done here, W. Come children, let us calculate. We know that eta 1 minus T2 upon T1. क्वेश्चन में ईटा दिया. ईटा कितना दिया क्वेश्चन में दिया? नहीं दिया. T2 दिया, T1 दिया. बट वी नो दैट ईटा कितना होता है भाई? ईटा इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, एफिशिएंसी फॉर्मूला? ईटा इज इक्वल टू, यस, ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1. सब्स्टिट्यूट करो. W अपॉन Q1 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1. अभी देखो W Q1 दिया, Q1 कितना दिया 6 दिया. T2 दिया, T2 कितना दिया टेम्परेचर ऑफ द सिंक. W अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 400 अपॉन 500. ठीक है. सो W अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 5. सो कैलकुलेशन करो, ये कितना होता है W अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 5 कितना होता है 1 अपॉन 5 होता है. ठीक है भाई. देन सो W इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. सो 6 अपॉन 5 कितना होता है भाई 1 अपॉन 2. वेरी गुड. 1 अपॉन 2 किलो कैलोरी इज द आंसर. ठीक है. ओके. So look at the question. A scientist says that the efficiency of his heat engine, which work at source temperature 127 degrees Celsius and sink temperature 27 degrees Celsius. We know that 1 minus T2 upon T1. T2 is given. T2 is how much? क्वेश्चन को देखो, T2 कितना दिया? T2 दिया how much? हाँ, कितना है बोलो कितना है? T1 T2 बोलो. T2 बोले तो टेम्परेचर ऑफ द सिंक. T1 बोले तो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है ना. टेम्परेचर ऑफ द सिंक कितना है? सिंक कितना है देखो 27 है. T2 27. T1 हाउ मच? T1 127. केल्विन को कन्वर्ट करो. प्लस 273 ये कितना होगा? ये 300 होगा. ये कितना होगा? ये 400 होगा. ठीक है. सो कैलकुलेशन करो. सो 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 400. ठीक है. सो 100 डिवाइडेड बाय 400. सो इट इज हाउ मच? ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. 1 अपॉन 4 बोले तो 0.25. सो परसेंटेज 0.25 इंटू 100 कितना होता? 25% होता एफिशिएंसी. बट साइंटिस्ट कितना बोला? 26% बोला. सो इट इज पॉसिबल? सो हाईली इम्पॉसिबल.
Answer is impossible. Yes, tick करो. Answer is impossible. Option A is the correct answer. So this completes your thermodynamics chapter. Okay, children. So I am going to give few numericals as a homework. Try to solve yourself, children. Is it clear? So in the next class we are going to start so another important chapter. Is it clear? So thank you so much, children.